ہم نے کسی قسم کا خون خرابہ نہیں ہونے دیا، البتہ فی الحال اس بارے میں صحیح معلومات تو ہاسپٹل سے ہی ملے گی آپریشن کے بعد۔ ساتھیوں کو کچھ چیزیں ملی ہیں، میں نے سوچا آپ بھی دیکھ لیں تو اچھا ہے۔ بہت اچھا آپریشن رہا انسپکٹر صاحب۔ بہت شکریہ۔ گولیوں کو اس پیکٹ میں پیک کیا ہوا تھا، ایرانی اور امپورٹڈ چاکلیٹوں کے پیکٹس میں۔ ان گولیوں کا رنگ بھی چاکلیٹ سے کافی ملتا جلتا ہے۔ انہیں آپ مہربانی کر کے لیب بھیج دیں، مجھے ان کے مکمل تفصیلی رپورٹ چاہیے۔ ضرور، بہت دلچسپ ہے۔ گولیوں کے اوپر بنے ڈیزائن اب تک اس طرح کے نہیں تھے۔ ان سب کی ہمیں تصویریں چاہیے، ان نقش و نگار کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس وقت تو مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، البتہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو ہماری مدد یہ تصویریں کب تک آپ کو بھجوا دوں؟ آج رات تک۔ جی۔ کیا آپ اس بڈھے کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے؟ کیا اس کا اجازت نامہ لے لیں تاکہ آپ اسے اپنے ساتھ یونیورسٹی لے جا سکیں؟ ملزم آٹے کی بوری کی طرح ہوتا ہے، جتنا اسے جھٹکو گے کچھ نہ کچھ آٹا تو گرے گا۔ یہ بڈھا ایک عرصے تک آٹے کی بوری تھا، اب اس سے زیادہ اس کی معلومات ہماری کسی میرے اور تمہارے سوال کرنے کے انداز میں بہت فرق ہے۔ اس کی ایکسپائری ڈیٹ تو ہے نہیں، یہی وجہ ہے کہ خود کو پسوانے پر تیار نہیں ہے۔ اگر آٹا چاہیے تو اس وقت چکی اور چکی چلانے والا میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ جان لیں کہ آج ہم نے کن نئی چیزوں کے سراغ لگایا ہے، وہی جو آپ کا اصلی کام ہے۔ ارے یہ کہاں سے آپ کے ہاتھ آیا؟ آج 2 جوانوں نے ان گولیوں کی مدد سے خودکشی کی ہے۔ ان گولیوں کے اوپر موجود علامات یہ بتاتی ہیں کہ بنانے والا تاریخ اور ثقافت سے بھی واقف ہے۔ تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس پر شعر و ادب اور اقوال زرعی کندہ کرتے ہیں، ہم نے انہیں چھاپ لیا۔ کیا یہ کسی گینگ سے وابستہ ہے؟ ہم ان سب سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں۔ وہ گینگ جو ان گولیوں کی پیداوار اور ترسیل پر کام کر رہا ہے، اطمینان رکھو کہ وہ مطلوبہ بازار میں برین واشنگ بھی کر رہے ہوں گے۔ آپ کی اس تجزیے سے تو میری 3 مہینے کی محنت پانی نظر ہوتی آ رہی ہے۔ کیا کسی کو زندہ پکڑ پائے ہو؟ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ چونکہ تمہیں پہچانتا ہوں اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ آپ اطمینان رکھیے، ان میں کچھ زندہ بھی ہیں، ان کے درمیان کچھ غیر ملکی افراد ہیں۔ دلچسپ ہے، چلیں۔ کہاں؟ تو چل کر ان سے بات کرتے ہیں۔ ہاسپٹل میں ہے۔ کیا واقعی ان میں ایک کو بھی زندہ پکڑنا اتنا مشکل تھا؟ یہ مجھ سے جا کر پوچھیے کہ جو بھاگنا چاہتے تھے۔ میں اس سے کب مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ کیا ہوا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ لکھنا چاہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا؟ نہیں۔
کچھ کہا بھی نہیں؟ کہہ رہی ہے کہ میں کسی ایسے سے بات کروں گی کہ جس کے پاس مکمل اختیارات ہوں. یعنی وہ ضرور کچھ ڈیل کرنا چاہ رہی ہے. معاف کیجیے گا، ڈاکٹر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بیمار سے ملنے سے پہلے. ڈاکٹر اسدی آپریشن تھیٹر پلیز. ڈاکٹر اسدی آپریشن تھیٹر پلیز. میں جانتا ہوں کہ یہ خاتون آپ کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہیں، لیکن جب تک وہ میری مریضہ ہیں ان کی سلامتی کا ضامن میں ہوں. ہمیں بھی اس سے ملنے پہ اصرار نہیں، لیکن حالات میں اس سے بات کریں، وہ خود چاہتی ہے. بہرحال ہمیں بیمار کی حالت کا خیال تو رکھنا پڑے گا. معاف کیجیے گا، ڈاکٹر ہونے کی بنا پر کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، اس کا صحیح سالم رہنا جتنا آپ کے لیے ضروری ہے اتنا ہمارے لیے بھی. شکریہ. خدا حافظ. They have told me that you come here with completely official rights. It's easy for me to speak in Italian. لیکن میرے لیے زیادہ آسان ہوگا اگر آپ فارسی میں بات کریں. محترمہ بگرٹینی. So, you will need a translator in case if you don't know Italian or at least English. محترمہ آدیانا باگراتینی، ڈومینیکو بیٹی اسکول کی جینیس طالب علم، ٹورین شہر میں. 1187 میں آپ کی والدہ مہین پرویزی اٹلی ہجرت کرتی ہیں. آپ کا منگیتر چیزارا سوریزو آپ کو انڈسٹریل نشے کے کام میں وارد کرتا ہے. چیزارا 2014 میں میڈی شہر میں اپنے مخالف گینگ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اور اس کے بعد سے اس کی جگہ کو آپ پور کرتی ہیں. اور ہاں، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس ڈیل کی اہمیت اور آپ کے فارسی زبان کے اوپر تسلط کی بنا پر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ خود اس کانٹیکٹ کو ڈیل کریں. تو پھر بہتر یہ کہ آپ فارسی میں بات کریں. آپ کے پاس مکمل اختیارات یہ ہیں. تو آپ کی فراہم کردہ معلومات اور آپ کے تقاضوں پر منحصر ہے. ممکن ہے کہ ہاں، ممکن ہے کہ نہیں. میرا پہلا تقاضا ایک سوال کا جواب جاننا ہے. میں تمہاری ہر خواہش سننے یہاں آیا ہوں. اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہوئی تو میں سوال کروں گا اور تم جواب دو. میرے سوال کا جواب میری کسی مشکل کو حل نہیں کرے گا، لیکن ممکن ہے کہ میرا اور آپ کے ایک ساتھ کام کرنے کا اچھا آغاز ثابت ہو. وہ سوال کیا ہے؟ کیا آپ خود مجھ تک پہنچے ہیں یا پھر یورپ کی خفیہ معلوماتی سروسز نے میرا سراغ آپ کو دیا؟ تم اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اہم ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جب بھی تم اصلی بات کی طرف آنا چاہو تو مجھے کہلوا دینا. اگر یورپیوں نے میرا سراغ آپ کو دیا ہے تو جان لے کہ انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا. آخر ہم کیوں منشیات کے خلاف اپنے ساتھ کام کرنے والوں پر شک کریں؟ اگر مجھے ان کے حوالے نہ کریں تو میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں گی. اگر ہم تمہیں ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہوئے تو؟ اس سے پہلے کہ وہ میری واپسی کا مطالبہ کریں ان سے کہہ دیں کہ میں مر گئی ہوں. اور اگر انہیں تمہاری لاش چاہیے ہو تو؟ میں مطمئن ہوں کہ آپ اس کا حل ضرور نکال لیں گے. اس کی اتنی اہمیت بھی ہونی چاہیے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری فراہم کردہ معلومات کی اتنی اہمیت ہونی چاہیے. اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمیں تو صرف آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے کام پر لگایا گیا تھا تو آپ کا فوری رد عمل کیا ہوگا؟ ہمارے کام میں ہمیشہ ایسے امکانات موجود رہتے ہیں. مجھے حیرت نہیں ہوگی، لیکن میری کوشش ہوگی کہ ہمیشہ اس سے ایک نیا سبق سیکھو. اب تم بتاؤ، میں کیوں تمہاری باتوں پر یقین کروں؟ تاکہ آپ میری باتوں پر یقین کر سکیں، آپ مجھے قلم اور کاغذ دے دیں تاکہ میں آپ کو اس کارگو کی جغرافیائی لوکیشن بتا دوں کہ جو ایران کے سمندر پر سے ہو کر گزرے گا.
तय ये हुआ कि इंडस्ट्रियल नशे का इब्तदाई मवाद ईरान के समंदरों से गुजरकर हांगकांग की बंदरगाह पर पहुंचे। ठीक। फिर इंटरपोल और बहुत से दूसरे इदारे आपको मुल्जिम ठहराएंगे कि ये इब्तदाई मवाद आपके मुल्क से भिजवाया गया है और फिर वो इसके ज़रिए बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आप हमेशा कहते हैं कि नशे का सामान इंडस्ट्रियल पैमाने पर जर्मन खाम माल के साथ आपके खुद के खिलाफ इस्तेमाल करने में तब्दील करते हैं, इतनी ही आसानी से। अगर ये नक्शे जो तुमने यहाँ खींचे बताएं दुरुस्त हुए तो मैं तुम्हारे तकाजे पर गौर करूँगा। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था। मैंने कोई वादा नहीं किया था। चलता हूँ। इससे पहले कि नशे की स्मगलिंग के गैंग के खिलाफ टिक टैक्स को इंतखब किया जाए, कुछ चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। खुद को जानना, इस्तेदाद और सलाहियत को जानना, दुश्मन को जानना, अहदाफ और सलाहियतों को पहचानना, आलात और इम्कानात की मालूमात, वक्त का इस्तेमाल, हासिल शुदा मालूमात की अहमियत। इन मौज़ूआत पर तो काफ़ी बात हो चुकी है। कोई सवाल? नहीं सर। हासिल शुदा मालूमात की अहमियत यानी कम तरीन खर्च में कामयाबी तक पहुंचना। साल हा साल गुजर चुके हैं कि नशे की पैदावार का पहिया घूम रहा है कि जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं। ऐसे क्या काम करे कि जिससे इस पहिए को रोका जा सके या इसकी रफ्तार में कमी लाई जा सके, ये अगली क्लास का सवाल है। अब आप लोग जा सकते हैं। अगर ये टेलीफोन वाली बात ठीक हुई तो तुम्हारी दरख्वास्त पर गौर किया जा सकता है पैकेट टेनिस का। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था। मैंने कोई वादा नहीं किया। पूछगछ का नतीजा इन तफसीलात की सूरत में निकला है। क्या ख्याल है? मुझे तो इस पर भरोसा नहीं है। ये सारी मुफाहमत की बातें, मुआहदे, दो तरफ़ा ताउन। अगर ठीक हुआ तो आद्रियाना का बॉस कौन है? हमें उसका सुराग लगाना चाहिए। हकीकत में हमारा असल हदफ तो वो है। हाँ, इस सवाल का जवाब तो खुद आद्रियाना ही दे सकती है। यह औरत या तो खुद बहुत अक्लमंद है या फिर उसे अच्छे से सिखाया पड़ा गया है। मैं उससे पूछगछ जारी रखूँगा, लेकिन आप लोग उसकी एक एक चीज़ को चेक करें, छोटी से छोटी बात पर गौर करें। आप लोग ये समझ कर काम करें कि इन दस्तावेज़ात और मालूमात में छोटा सा भी झोल नहीं है। इस तरह से हम झूठ को सच से अलग करके पाएंगे। जो जितना सादा दिखता है वो यकीनन उतना ही पेचीदा है। ये बात जहन में रहे। मुझे मालूमात चाहिए, तज्जिया नहीं। मेरा ये ख्याल है कि इन गोलियों के ऊपर जो तस्वीरें और निशान बने हुए हैं, इन्हें तज्जिया और फिक्र की ज़रूरत है। मेरा मतलब ये है कि आप लोग इत्तलात की जगह अपनी तज्जिया में मत शामिल कीजिए। कब पहुँचे? कल रात।
اصل میں صبح سواری کی فلائٹ تھی. وہ آیا ملاقات کے لیے؟ نہیں, افسوس ہے. عباس والی ملاقات ہو گئی؟ وہ نہیں آیا. مجھے لگا شاید خطرناک ہو. میں نے اس کے گھر والوں کو ایک محفوظ جگہ پر بھیج دیا. تمہاری اگلی منزل کون سی ہے؟ قبرص. میں نے سنا ہے کہ بلاخر لواسان کے ایک ولا تک پہنچ ہی گئے. ہاں, ابھی اسی بارے میں بات ہو رہی تھی. یہ دیکھو, ان کی سرغنہ ہے, ایک اطالوی نژاد ایرانی. کچھ کام کی معلومات بھی فراہم کی اس نے؟ ڈھیٹ ہے. تم ابھی یہیں ٹھہرو, ایک ساتھ چل کے اس سے بات کرتے ہیں. میں کافی عرصے سے ملک سے باہر تھا. آج کا دن تو گھر والوں کے ساتھ گزرے گا. کل سے حاضر خدمت ہوں. تو پھر یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ کام کی رپورٹ دینے آیا تھا. کون سا کام؟ سامنے والی پارٹی تو آئی نہیں. میں تو گیا تھا نا طے شدہ جگہ پر. جاؤ گھر جاؤ, میرا اتنا وقت ضائع مت کرو. چائے تو پی لوں پھر چلے جاؤں گا. اگر آدریانا کو ہمارے حوالے کر دیں تو اس سے ہماری تحقیقات مکمل ہو جائیں گی, اور ان تحقیقات کا نتیجہ یقیناً آپ کے بھی بہت کام آئے گا. آڈیانا کو گولی لگی ہے, اس کی گردن کو بھی پول میں گرتے وقت کافی چوٹ لگی ہے. اس کا ڈاکٹر سفر کی اجازت نہیں دے گا. آپ اپنی ٹیم کو اس سے پوچھ گچھ کے لیے بھیج سکتی ہیں. آپ جانتی ہیں کہ آڈیانا کو کس نے بھیجا ہے؟ ہمیں بھی اسی فرد کی تلاش ہے. اگر آدریانا ہمیں مل جائے تو ہم ضرور اصلی مہرے تک پہنچ جائیں گے. کیا آپ اس کی کوئی تصویر یا تفصیلات بتا سکتی ہیں؟ ہم ایک اسکیچ کے ذریعے اس کی تصویر بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. آپ نے یہاں تک اپنا کام بہت اچھے طریقے سے انجام دیا ہے, باقی ہم پر چھوڑ دیں. آدریانا کو 1-2 دن کے اندر ہمارے حوالے کر دیں. آپ کو وہ ٹیلی فون نمبر کے جو ہمیں فراہم کیے کہاں سے ملے تھے؟ I do not understand your question. ان کا سوال تو بہت آسان ہے. پوچھ رہے ہیں کہ اس گینگ کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ مجھے اس کا بالکل علم نہیں ہے, لیکن میں وہاں جرمنی میں موجود اپنے ساتھیوں سے پوچھ کر بتا سکتی ہوں. پھر تو ایسا ضرور کریں. اور کیا ان سے کہہ دوں کہ انہیں آدریانا مل جائے گی؟ یہ تو بیمار کی حالت تو اس کے ڈاکٹر کی اجازت پر منحصر ہے. آپ نے ہم سے کہا تھا کہ یہ ٹیلی فون نمبرز امریکہ اور ایران میں کوکائن کے بزنس کے کام میں فعال ہیں, لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ تو یورپ میں بھی ہیروئن کے کام میں فعال ہیں. یہ بھی انہیں سوالوں میں سے ہے کہ جس کا جواب آدریانا کے پاس ہے. جب ان سے پوچھا کہ انہیں یہ ٹیلی فون نمبرز کہاں سے ملے تو وہ سمجھ گئی, لیکن وہ وقت لینا چاہ رہی تھی تاکہ دیکھے کہ وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں. سمجھ گیا. جتنا وہ آدیانہ کو جلد سے جلد اپنے حوالے کرنے پر اصرار کریں, اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ آدیانہ صحیح کری. اگر وہ اسے پکڑنا چاہتے تھے تو کیوں وہاں یورپ میں ہی اسے نہیں پکڑا؟ اس سوال کا جواب وہ سے نہیں دے سکتی, یہ آدیانہ سے پوچھنا ہوگا. ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کس کے بارے میں؟ بوسوانا یا آدیانہ؟ بوستوا. وہ اپنا کام جانتی ہیں. کیا تمہیں لگتا ہے کہ لواسان ولا کی بات لیک ہو گئی ہے؟ تمہیں نہیں لگتا ہے کہ تم بہت سوال پوچھ رہے ہو؟ کس بارے میں؟ یہ لو, ایک اور سوال داغ دیا. او بھائی روک دو, میں یہیں پہ اتروں گا, مجھے تھوڑا پیدل چلنا ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے اپنے سوالوں کے جواب راستے میں مل جائیں گے یہیں پر. شکریہ. مجھے میرے کمرے میں واپس لے چلو. یہ میری فارسی کو بہتر کرنے میں مدد کرے گا. یہ اچھی بات ہے کہ اب تم بہتر ہو. تھینک یو. اس طرح سے تمہیں حوالے کرنا آسان ہوگا, تمہارے لیے بھی مشکل نہیں ہوگی.
तो क्या मुझे उनके हवाले करने का फैसला कर लिया है? तो मैं हवाले न करने की कोई वजह नहीं। ये तुम अपने पास रख सकती हो यादगार के तौर पर। आप लोगों के लिए अहम नहीं है कि यूरोपियन आप लोगों के खिलाफ केस कर मेरे लिए बैनुल-अक़वामी मुआविनीन के साथ दोस्ती और ताउन ज़्यादा अहम है। हकीकत में हम अपने बाहमी माहिदों पर पाबंद हैं। मैं एक झूठे के साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। खुश नसीबी है कि तुम्हारी जिस्मानी हालत काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर की इजाज़त देते ही तुम्हें उनके हवाले कर दूँगा। मैं असल में तुम्हें यही बताने आया था। खुदा हाफ़िज़। बहुत अच्छा, तुम जीते हैं। हकीकत बता दूंगी। लेकिन मेरी अब भी वही शर्त है, मुझे उनके हवाले मत करो। बेहतर होगा कि तुम मुझे मत बताओ, बल्कि हमारी बात को सुनो। मैं तुम्हारी तजावीज़ पर गौर करूंगा। आखिर में फैसला मैं करूंगा। आप जो जानना चाहेंगे मैं बता दूंगी। जो भी जानती हो बता दो। इससे शुरू करो। इसके बारे में क्या जानती हो? ये तस्वीर भी यूरोपियन आप लोगों को दी है। एक बार तुम इस तरीके को आजमा चुकी हो, तुम्हें कुछ नहीं मिला। फिर से तुम मत शुरू करो। कोई भी उसे नहीं पहचानता, यहाँ तक कि मैं भी के जो उसके लिए काम करती हूँ। इसके बारे में क्या जानती हो? कुछ नहीं। कोई भी शख्स उसकी असलियत से वाकिफ नहीं। कोई भी नहीं जानता कि उसकी हकीकत क्या है। जैसे कि उसकी बस यही चंद अधूरी तस्वीरें हैं जो इस दुनिया में हैं। मुझे भी उसी पर शक है। शायद वो खुद ही यही चाहता है कि इस तरह से दिखाई दे। अलबत्ता ज़्यादा सही ये कहना होगा कि वो दिखाई देना ही नहीं चाहता। वो लोग के जो उसके पीछे हैं जान ले कि वो इससे ज़्यादा पेचीदा तर हैं कि जितना कि सोच रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसका नेटवर्क पूरी दुनिया में है। वो अपने हर एजेंट से खुद ही रब्ता करता है, अहकामात भी खुद ही सादिर करता है। तुमने उसे देखा है? नहीं, सिर्फ वीडियो कॉल के जरिए, वो भी चेहरे के बगैर। उसका एक साया सा देखा था। उसके एजेंट भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। वो अपने तमाम कामों को खुद ही देखता है और प्लान करता है। उसके बंदे उसके अहकामात पर अमल करते हैं। जितने भी हिफाजत से बचे रहने के तरीके हैं वो उसने अपनाए हुए हैं ताकि उसे नुकसान ना पहुंचे। यही वजह है कि अब तक वो पकड़ा नहीं गया। तो ये सब कुछ शुरू में क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि आप यकीन ना करें। मुझे अभी यकीन नहीं है। आपको इस दास्तान के बीच में हमारे पीछे लगा दिया। इससे पहले और बात का कुछ भी नहीं बताया। अच्छा तो तुम बताओ। पैट्रिक एक केमिस्ट है। हमारी ईरानी एजेंट के साथ ईरान में मुलाकात तय थी। हम नई गोलियों का फार्मूला उन्हें बताना चाहते थे और चाहते थे कि पैट्रिक उनके साथ मिलकर सैंपल बनाए। तय ये हुआ था कि मिडल ईस्ट में नई गोलियों की पैदावार का मरकज ईरान बन जाए। यूरोपियन एजेंट इस बारे में जानते थे। हमने जब देखा कि ईरानी एजेंट विला में नहीं है तो हमें अंदाजा हो गया कि किसी ने उन्हें खबरदार कर दिया। किसने उन्हें बताया? स्टेफन। स्टेफन? ये वही नाम है कि हम लोगों ने उसे दिया है। कोई भी उसका नाम नहीं जानता है, इसलिए भी ये अहम नहीं है कि उसे किस नाम से बुलाया जाए। सिर्फ उसका काम उसके नज़दीक अहमियत रखता है। वो इस वक्त इंडस्ट्री या नशे की इब्तदाई तैयारी का बादशाह है। आपने बिला जाने ही हमें गिरफ्तार करके उसकी मदद की है। हमने ईरान में उसकी नई गोलियों की प्रोडक्शन लाइन को तो पकड़ लिया है। ये बताओ कि तुम्हारे पकड़े जाने से उसे किस तरह की मदद मिली? इसीलिए तो कह रही हूँ कि यूरोपियन ने उसके साथ खेल खेला है। गोलियों वाली डील के खराब होने से यूरोपियों को क्या फायदा हासिल ये हुआ? गोलियां तो उनके लिए सिर्फ एक जरिया है। उन्होंने ये गोलियां इससे बड़े मामले के लिए दी हैं। वो अंग्रेजों के साथ एक खुफिया मुआहदा कर रहे हैं
ताकि वो लोग नशे की पैदावार और तरसील को यूरोप में कम तरीन सतह पर ले आए। उसके बदले में ये लोग मिडिल ईस्ट में उनका रास्ता नहीं रोकेंगे। बहुत बड़ा दावा है, समंदर के कोऑर्डिनेट्स वाले दावे से भी बड़ा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जब मैं उनका सुराग लगाने में नहीं गया तो उसके पीछे क्यों जाऊं? इसके लिए कोई दलील नहीं है मेरे पास। मेरे पास भी तुम्हारी बातों पर यकीन करने की कोई दलील नहीं। मुझे तो तुम्हें उनके हवाले ही करना होगा। वो मुझे मार देंगे। मैं वापस जाऊंगी तो वो मार देंगे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कुछ बताया या नहीं। मुझे मार देंगे। मुझे यहीं पर रहने दें, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। मुझे मार देंगे। हेलो मुर्तज़ा, आर्याना के डॉक्टर से बात करो। देखो अगर उसकी तबीयत बेहतर है तो उसे जेल मुंतकिल करवाना बेहतर होगा। जरूर, अभी फौरन जाकर बात खुदा हाफिज़। सिर्फ इतना जानते हैं कि उसका नाम स्टेफन है। मिडिल ईस्ट के मनशियात के माफिया में ईरान का सरगना है। ये कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसका माजी क्या था, उसका असल नाम क्या है और किस तरह उस तक पहुँचा जा सकता है, ये सब का सब हम इस कमरे से शुरू करेंगे। फिलहाल तो हम आर्याना के नेटवर्क के बारे में काम मैंने करेंगे। आर्याना के पासपोर्ट पर किए गए मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़र से एक ग्राफ बनाया है। उसने बहुत सी जगहों का सफ़र किया है, सबसे ज़्यादा कनाडा का। उसके पास जो अफ्रीकन पासपोर्ट है उसके ज़रिए वो एक खैराती इदारे की रुकन है कि जिसकी अक्सर सरगर्मियाँ मंशियात के ख़िलाफ़ काम में हैं। हो सकता है वो ये काम अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए करती हो। इसका इम्कान है। उस खैराती इदारे और लीबिया के एक बैंक के क्रेडिट कार्ड के बाहम ताउन की दलील उनके ज्यादातर माली लेन देन उसी अकाउंट से अंजाम तमाम दिए माली गए हैं। लेन देन के मामला हम इंटरपोल की मदद से अंजाम देंगे। अगर लगा कि वक्त ज़ाया हो रहा है तो फिर माली इदारे के साथ किसी और तरीके से इसको अंजाम देंगे। लैपटॉप की रिकवरी के जरिए तुम्हारे हाथ क्या लगा है? बहुत सारा डेटा है और बहुत सारी दस्तावेजात। इसकी चेकिंग में अच्छा खासा वक्त लगेगा। तो फिर वक्त लगाओ, क्योंकि तुम्हें दस्तावेजों से बात करना सीखना होगा। सिम कार्ड्स डिकोड हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अक्सर नंबर नकली हैं। टेक्सास में मौजूद दुकानदार से लेकर मेक्सिको में एक घर तक और फ्रांस में एक हॉस्पिटल तक। उन्हें बहुत ज्यादा नकली मत समझना। ये कहना बेहतर होगा कि अभी तक कोई सिरा हाथ नहीं लगा। मनशियात हमसे कई कदम आगे बढ़ चुका है। कैंसर का ट्यूमर बन चुका है। मेरा तो ये ख्याल है कि मनशियात की तजारत के खिलाफ सज़ा को बढ़ा दिया जाए। मनशियात के गैंग के सरगने बात समझ लें कि 1 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं बच पाएंगे। इस तरह से उन्हें पैसों का लालच भी नहीं होगा। उस दुनिया में तो अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। तुमने अपने जवानों की ट्रेनिंग भी बिल्कुल अपने तर्ज पर की है। अलबत्ता ये हमारे मुर्तज़ा साहब मुझसे भी 2 हाथ आगे हैं, बुरा भी नहीं। लेकिन आपके जो असूली तौर पर लड़ने के हामी हैं, थोड़ा सा वक्त निकालें और उनके साथ थोड़ा सा हवालात का चक्कर भी लगाएं। बल्कि मुझे लगता है कि इस तरह बैगराटीनी साहिबा से भी कुछ मुफीद मालूमात हासिल कर पाएँ। अब तक कई बार ये जेल मनशियात के मुलजिमों से भरा और खाली हुआ है, लेकिन आखिर में कुछ नहीं हुआ। अगर हम फांसी और जेल जैसे संगीन सजाएं भी हटा देंगे तो हालात इससे बदतर हो जाएंगे। हमें अपना तरीका बदलना होगा। लोगों की उमूमी मालूमात को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। लोगों को ये जानना होगा कि नशे का इस्तेमाल तदरीजी खुदकुशी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जाइए, आंखों पर से पट्टी हटाइए।
بیٹھ جائیے. یہ اعداد و حروف تمہارے لیے جانے پہچانے نہیں ہے؟ واضح ہے کہ یہ ماہرانہ انداز میں لکھے پاس ورڈ ہیں. یہ آسانی سے ہمارے ہاتھ نہیں لگے ہیں. بہت سارے لوگ نے ہمارے ہاتھ لگنے سے بچانے کی خاطر موت کے منہ میں اتر گئے. یہ سب اسٹیفن کے نیٹ ورک کے کوڈ ہیں. سب کے سب آنے اور جانے والے پیغامات پہلے ان کوڈز کو پاس ورڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر سیٹلائٹ فون کے ذریعے یہاں سے وہاں ہوتے ہیں. یہ سب سیٹلائٹ سم کارڈز کے ذریعے نکالے گئے ہیں. اصل میں ان کی پیچیدگی ان کی سادگی میں ہی ہے. کس طرح؟ مثلا یہ لکھا ہوا ہے تہران، یا پھر یہاں پر ایران. اور باقیوں کے بارے میں نہیں معلوم، کیونکہ ایران اور تہران تو میرے کوڈز میں بھی تھا. اصل میں ان سب کا کوئی نہ کوئی معنی ہے اور ان میں سے بعض بے معنی، جیسے کہ یہ یا پھر یہ. ان لوگوں کی طرح کے جو پزل حل کرتے ہیں، آپ کو صبر کرنا ہوگا کہ جب تک خاص یا پھر مقرر کوڈز نہیں مل جاتے، یا پھر آپ کسی تیز رفتار کمپیوٹر کے حوالے کر سکتے ہیں تاکہ وہ اینالائز کرے. مجھے نہیں معلوم اس میں کتنا عرصہ درکار ہم ان تمام ہوگا. ایک جیسے حروف اور اعداد کو ایک ٹیبل کی صورت میں ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں ان سے مزید کچھ مشترک چیزیں مل سکیں. اس راستے کو ہم اتنا دہرائیں گے کہ تمام صفحات کو سمجھ سکیں. کوشش کرو کہ آدھے گھنٹے تک جب ہم لوٹیں تمام مشترک کوڈز کو تلاش کر لو. میں ان الفاظ کو تلاش کر پائی ہوں: شکر، پرندہ، سمندر، بارڈر، بازار. وقت لگے گا، اس کے اوپر مسلسل کام کرنا ہوگا. ان سے کیا معنی نکلتا ہے؟ احتمالاً پرندہ کسی ایجنٹ کا نام ہے، یا پھر شاید کوئی ایسا شخص کہ جو ایران میں ان کا ساتھی ہے. پرندہ شاید کسی پرندے کے نام پر ہوگا، مثلا فاختہ، کبوتر، مینا، کوا، تتلی. تمہارا فرضی نام کیا تھا؟ ابریشم. اور باقی؟
शक्कर से मुराद शायद एफड्रिन होगा, जैसे मेथाम्फेटामिन। यानी तमाम कोर्स ज़्यादातर इब्तदाई मवाद के बारे में हैं। सारे यूरोप और मिडिल ईस्ट में स्टेफान अनोखी किस्म के इब्तदाई मवाद तर्सील करती ये है। स्टेफान असल में क्या काम करता है? मिडिल ईस्ट में ईरान की सरगना है। स्टेफान को सुराग बताओ ताकि उस तक पहुंचा जा मुझे सके। नहीं मालूम, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे नहीं मालूम, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी जानता होगा। वो खुद ही हमेशा दूसरों के पास जाती है, वाह, और जगह की तयन के बगैर। अगर एक बार आप उस तक पहुंच जाएं, तो इत्मीनान रखें कि यह आखिरी बार होगा कि जो उसे आप देखें। ईरान में उसका एजेंट कौन है? मत कहना कि नहीं जानती। मुझे क्यों मालूम होगा, मेरा तो काम ही कुछ और था। तुम्हारा काम तो नेटवर्क का क़याम था, तुम यकीनन बहुत सौ को जानती होगी। देखें, स्टेफान के सेटअप में 3 ऐसे ग्रोह हैं कि जो लंबी जिंदगी नहीं पाते। वो लोग के जो नेटवर्क कायम करते हैं, वो लोग के जो उनके लिए कंप्यूटर हैक करते हैं, और अकाउंटेंट्स। उन लोगों को ये एक मुद्दत के बाद खत्म कर दिया जाता है। तुम तो जिंदा बच निकली। जी हाँ, जब तक मैं आपके पास हूँ। इसीलिए मेरा इसरार था कि यहीं पर रहूं। रहने की शर्त मालूमात की फराहमी है, वरना तुम्हें यूरोप भेज दिया जाएगा। अगर मैंने नाम और नेटवर्क बता दिए तो मेरे लिए यहाँ यूरोप पे कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वो लोग मुझे मारने के लिए जेल में अपना भी भेजेंगे। हम तुम्हारी जान की जमानत देते हैं। मैं मानती हूँ, आप खुद को अच्छे से जानते हैं, लेकिन यकीन करें आप स्टेफान को नहीं जानते। स्टेफान क्यों उसका हवा बनाया हुआ है? उन सब ने, तुम सब ने लोगों कितने बेगुनाह जवानों को नशे और खमार के बायस मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तुम लोग खुद मौत से डरते हो। अपने हर एक जुमले से तुम लोग अपना नया खाता खोलना चाहते हो। देखो मोहतरमा बेशम, हम खुद ही स्टेफान को ढूंढ लेंगे। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि अब तुम भी खुद को यूरोप जाने के लिए तैयार कर लो। वहीं चले जाओ जहां से आई थी। मेरा और मेरे साथी के काम करने का अंदाज मुख्तलिफ है। हम लोग महदूद अरसे तक कोई भी बहाना बनाकर आपको उनके हवाले करने से रोक सकते हैं। बहुत से लोग हैं कि जो ना चाहते हैं ना होने देंगे कि आप स्टेफान तक पहुँचे। तुम अपना काम करो, वो भी अपना काम करेंगे, हम भी अपना काम करेंगे। और हाँ, तुम्हारे होने या ना होने से हमारे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले भी आपके साथी से कहा था, यूरोपियन ने खासतौर पर ब्रिटेन ने स्टेफान के साथ डील की है। मिडिल ईस्ट की मार्केट उसके हवाले कर दी है ताकि यूरोप में पैदावार ना हो। कितना बुरा। अब तो इसका जिंदा रहना पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक है। हम उन्हें मिडिल ईस्ट में अपनी स्ट्रेटेजी पर अमल नहीं करने देंगे। मिडिल ईस्ट, खासतौर पर ईरान, न स्टेफान के लिए और न इस जैसे हजारों के लिए कोई तरने वाला नहीं है। तुम भी अपना फैसला कर लो। रुक कर मालूमात देना चाहोगी या यूरोप वापस जाना चाहोगी? इसे लॉकअप में वापस ले जाओ। तुम्हारा फर्जी नाम अब्रेशम क्यों है? इसलिए कि हेरोइन और मॉर्फिन को मुंतकिल करने का नेटवर्क जो मैंने बनाया था अब्रेशम हाईवे पर था, मशरक़ से मग़रिब और उसके बरअक्स। आपका क्या ख्याल है? झूठ नहीं बोल रही, लेकिन सब कुछ बता भी नहीं रही। वक्त ज़ाया कर रही है। ये स्टेफान के एजेंट को जानती है, बता नहीं रही। अभी इसे न ले जाओ, मैं खुद इससे बात करना चाहता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं जा सकती हूँ? तुम्हारी तबीयत ठीक है, सिर्फ थोड़ा डर गई हो। हम ईरानी कहते हैं कि न चोरी करो
न डरना पड़े। क्या आप ये बताएंगे कि मैंने क्या चुराया है? मालूमात। जब कोई झूठ बोलता है यानी वो सच को चुरा रहा है। तो अब आप गुड कॉप का किरदार अदा कर रहे हैं। अगर अगले 48 घंटों तक हमें स्टेफान और इसके एजेंट्स के बारे में मालूमात हासिल न हुई तो मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ कर आऊंगा। तो आप जबरदस्ती करना चाहते हैं? जब मेरे पास मालूमात ही नहीं है तो फिर आप क्यों इसरार कर रहे हैं? तो तुम जाकर अपने सेल में बैठो, हम किसी न किसी तरह उन तक पहुंच ही जाएंगे। देखते हैं कि तुमने सच कहा था या झूठ। मैं किस तरह से साबित करूं कि जो बताया वो सच था? कह दिया है कि झूठ सच जांचने की मशीन यहाँ ले आए, अदालत के नुमाइंदे के सामने उसे तुमसे लगाएंगे और अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो फिर मीटिंग बुलाई जाएगी और फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। तेहरान के शिमाल में घर का एड्रेस बताती हूँ। उसका ताल्लुक ईरान में स्टेफान के एजेंट के ठिकाने से है। ये घर रहने के लिए नहीं है, मिलने के ठिकानों में से एक है। सब्र करना पड़ेगा ताकि उनमें से कोई वहाँ नजर आए। नहीं मालूम, शायद एक दिन, शायद 10 दिन या और ज्यादा। उस गली में कोई दरख्त भी है? मशरक से मगरिब की सामत में दरख्त है, उस तरफ कोई दरख्त नहीं। घर का दरवाजा कैसा है, लोहे का है या लकड़ी का? आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? इस नक्शे की मदद से आप बड़े आराम से उस घर तक पहुंच सकते हैं। शक मत करें। शक नहीं कर रहा, एड्रेस बिल्कुल ठीक है। मैंने गलती की जो शुरू में ही हकीकत आपको नहीं बताई। अब आपको मेरी सही बात पर भी यकीन नहीं आ रहा। काम करते करते हमें कई साल गुजर चुके हैं। पूछगछ के वक्त ऐसे फरीमों के बारे में हमने बहुत सुना है। दहशतगर्द घर के एड्रेस को बड़े अच्छे से याद करते हैं और इसके जरिए वक्त हासिल करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ईद की तरह। कहते हैं कि मुमकिन है कि टारगेट अभी फौरन ही वहां पर ना आए। आदरियाना साहिबा, आप मुझे धोखा नहीं दे सकती। बहुत अच्छा, अब बात हो गया।